ہندوستان، جسے سونے کی چڑیا کہتے تھے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے، جب نہ ہندوستان تھا، نہ کوئی بادشاہت، نہ بڑے شہر، نہ عظیم قلعے، تب اس سرزمین پر جنگلات تھے، دریا بہتے تھے اور انسان پتھروں سے شکار کیا کرتے تھے۔ یہ سٹون ایج تھا۔ وقت گزرتا گیا اور تقریباً 3300 قبل مسیح میں ہڑپا اور موہنجو داڑو جیسی عظیم تہذیبیں ابھری۔ سیدھی سڑکیں، بازار، پانی کا نظام اور بڑے شہر۔ یہ لوگ تجارت کرتے تھے اور اپنے وقت سے بہت آگے تھے۔ پھر 1500 قبل مسیح کے آس پاس آریا ہندوستان آئے۔ وہ اپنے ساتھ نئی زبانیں، وید اور ذات پات کا نظام لائے۔ برہمن، کشتری، ویش اور شودر۔ آہستہ آہستہ یہی نظام ہندوستانی معاشرے کی بنیاد بن گیا۔ مگر اسی زمین پر روحانیت بھی بڑھی۔ رشی جنگلوں میں عبادت کرتے، گنگا کو مقدس مانا جاتا اور بڑے بڑے مندروں میں پوجا ہوتی۔ پھر مہاتما بدھ اور مہاویر آئے۔ انہوں نے امن، سادگی اور عدم تشدد کی تعلیم دی۔ بعد میں چندر گپت موریہ نے بڑی سلطنت قائم کی اور اشوکا کالنگی کی خون ریز جنگ کے بعد بدھ مت کی طرف آ گیا۔ اس نے سڑکیں، ستون اور بدھ خانقاہیں بنوائیں۔ وقت گزرتا گیا، راجپوت طاقتور ہوئے، ان کے قلعے، تلواریں اور جنگی روایات مشہور ہوئی۔ جنوب میں چولا سلطنت سمندری تجارت پر راج کرتی تھی۔ ہندوستانی مصالحے، ریشم اور کپڑے دنیا بھر میں جانے لگے۔ ہندوستان اب صرف ایک زمین نہیں تھا، یہ تہذیبوں، مذاہب اور ثقافتوں کا مرکز بن چکا تھا۔ کہیں مندروں کی گھنٹیاں بجتی، کہیں بدھ خانقاہوں میں خاموشی ہوتی، اور اسی دوران عرب تاجر ہندوستان کے ساحلوں تک پہنچنے لگے۔ وہ یہاں کی دولت، مصالحے اور بازار دیکھ کر حیران رہ جاتے، مگر انہیں ابھی معلوم نہیں تھا کہ جلد اسی سرزمین پر اسلام قدم رکھنے والا ہے اور ہندوستان کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ 7ویں صدی عیسوی۔ عرب کے صحرا خاموش نہیں رہے تھے۔ مکہ اور مدینہ سے اٹھنے والی ایک آواز تیزی سے دنیا میں پھیل رہی تھی۔ اسلام یہ صرف ایک مذہب نہیں تھا، یہ ایک نئی سوچ تھی، ایک نئی تہذیب جو انسانوں کو برابر سمجھتی تھی۔ جہاں غلام اور بادشاہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو سکتے تھے، چند ہی دہائیوں میں اسلام عرب سے نکل کر فارس، شام، مصر اور وسط ایشیا تک پہنچ چکا تھا۔ اور پھر عرب تاجروں کی نظریں دوبارہ ایک قدیم سرزمین کی طرف گئیں، ہندوستان، وہ سرزمین جسے دنیا سونے کی چڑیا کہتی تھی۔ اس وقت ہندوستان دنیا کے سب سے بڑے تجارتی مراکز میں شمار ہوتا تھا۔ ملابار کے ساحل، گجرات کی بندرگاہیں اور سندھ کے راستے دنیا بھر کے تاجروں سے بھرے رہتے تھے۔ ہندوستان کے بازاروں میں کالی مرچ، دار چینی، لونگ، ریشم، عطر، ہیرے اور قیمتی کپڑے فروخت ہوتے تھے۔ عرب تاجر مہینوں سمندر کا سفر کرتے، راتوں میں ستاروں کے ذریعے راستہ ڈھونڈتے، بڑے طوفانوں اور خطرناک لہروں سے لڑتے ہوئے آخرکار ہندوستان کے ساحلوں تک پہنچتے۔ جب ان کے بڑے بادبانی جہاز ملابار کے ساحل پر لنگر انداز ہوتے تو مقامی لوگ حیرت سے انہیں دیکھتے۔ عربی لباس، پگڑیاں، اونٹوں پر لدا سامان اور مختلف زبان، یہ سب ہندوستانیوں کے لیے نیا تھا، مگر ایک چیز انہیں سب سے مختلف بناتی تھی، ان کا کردار۔ وہ تجارت میں جھوٹ نہیں بولتے تھے، ناپ تول میں دھوکہ نہیں دیتے تھے، وعدہ پورا کرتے تھے اور غریبوں کے ساتھ عزت سے پیش آتے تھے۔ ہندوستان کے لوگ پہلی بار ایسے تاجروں کو دیکھ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ عرب تاجروں اور مقامی لوگوں کے درمیان تعلقات بڑھنے لگے۔ بازاروں میں دوستی ہوئی، کاروبار بڑھا، اور پھر کچھ عرب تاجر ہندوستان میں ہی آباد ہو گئے۔ انہوں نے مقامی خاندانوں میں شادیاں کی اور ساحلی علاقوں میں چھوٹی مسلم بستیاں بننے لگی۔ رات کے وقت سمندر کے کنارے چھوٹی مساجد میں چراغ جلتے اور پہلی بار ہندوستان کی فضا میں اذان کی آواز گونجنے لگی۔ کہا جاتا ہے کہ کیرلا کے ساحل پر ہندوستان کی پہلی مسجد، چیرامان جمعہ مسجد، اسی ابتدائی دور میں تعمیر ہوئی۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب اسلام پہلی بار ہندوستان کی زمین پر مستقل طور پر قدم جما رہا تھا۔ مگر اسلام صرف عبادت کے ذریعے نہیں پھیل رہا تھا، بلکہ اخلاق کے ذریعے۔ اس وقت ہندوستان میں ذات پات کا نظام بہت سخت تھا۔ اونچی ذات والے الگ رہتے اور نچلی ذات کے لوگوں کو حقیر سمجھا جاتا۔ کچھ لوگوں کو مندروں میں داخل ہونے تک کی اجازت نہیں تھی۔
मगर मुसलमान ताजिरों के दरमियान लोग एक अजीब चीज देखते थे, बराबरी। नमाज में अमीर और गरीब एक साथ खड़े होते, काला और सफेद एक सफ में होते, कोई जात नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। और यही बात बहुत से लोगों के दिलों में उतरने लगी। कुछ लोग इस्लाम कबूल करने लगे, कुछ सिर्फ मुसलमानों के अखलाक से मुतासिर होते, और कुछ हैरत से इस नए दीन को देखते रहते। मगर यह सिर्फ आगाज था, क्योंकि इस्लाम अभी सिर्फ साहिलों तक महदूद था। हिंदुस्तान के अंदरूनी इलाकों में अब भी बड़ी हिंदू और बुद्ध सल्तनतें कायम थीं। राजे महाराजे हुकूमत करते थे, मंदिर सोने से भरे हुए थे, और ताकतवर किले मैदानों और पहाड़ों पर खड़े थे। इसी दौरान अरब दुनिया में एक नई ताकत उभर रही थी, अमवी खिलाफत। और इस खिलाफत के एक ताकतवर गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ की नजरें सिंध की तरफ उठने लगी। कहा जाता है कि अरब ताजिरों के एक जहाज पर हमला हुआ, औरतों और बच्चों को कैद कर लिया गया, और मदद की पुकार इराक तक पहुंची। हज्जाज गुस्से में आ गया। उसने सिंध के हुक्मरान राजा दाहिर से मुतालबा किया कि कैदियों को आजाद किया जाए, मगर हालात जंग की तरफ बढ़ने लगे। और फिर तारीख ने एक नौजवान सिपा सालार का नाम सुना, सिर्फ 17 साल की उम्र, मगर आंखों में अज़्म, हाथ में तलवार और दिल में इस्लाम का जज्बा। मोहम्मद बिन कासिम, वो नौजवान जो जल्द सिंध की सरजमीन पर कदम रखने वाला था, और जिसके साथ हिंदुस्तान की तारीख का एक नया बाब शुरू होने वाला था। मोहम्मद बिन कासिम एक अजीम लश्कर के साथ रवाना हुआ। घोड़े, ऊंट, मंजनीके और हजारों सिपाही। सहरा के तवील सफर के बाद वो सिंध की सरजमीन के करीब पहुंचे। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये दो तहजीबों का सामना था। एक तरफ अरब दुनिया और दूसरी तरफ कदीम हिंदुस्तान। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले देवल की बंदरगाह का रुख किया। यह सिंध का अहम तिजारती शहर था। ऊंचे मंदिर, मजबूत दीवारें और समंदर के किनारे आबाद एक मसरूफ शहर। जंग शुरू हुई। मंजनीकों से पत्थर बरसने लगे, तीर हवा में उड़ने लगे, और कई दिनों की लड़ाई के बाद देवल फतह हो गया। फिर मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ते गए। नीरून, सेवस्तान और दूसरे इलाके आहिस्ता आहिस्ता उनके कंट्रोल में आने लगे। मगर असल मुकाबला अभी बाकी था। राजा दाहिर अपनी अजीम फौज के साथ मैदान में उतरा। हाथियों पर सजे सिपाही, चमकती हुई तलवारें और जंगी नकारे। पूरा मैदान जंग की आवाजों से गूंज उठा। मोहम्मद बिन कासिम की फौज तादाद में कम थी, मगर नज्म, रफ्तार और हिकमत अमली में मजबूत थी। फिर फैसलाकुन जंग शुरू हुई। रेत उड़ रही थी, घोड़े दौड़ रहे थे, तीरों की बारिश हो रही थी, और दरमियान मैदान में राजा दाहिर अपने हाथी पर खड़ा लड़ रहा था। आखिरकार जंग का रुख बदल गया। राजा दाहिर मारा गया और सिंध अरबों के कंट्रोल में आ गया। ये एक तारीखी लम्हा था, क्योंकि पहली बार इस्लामी हुकूमत ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम जमा लिया था। मगर मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ जंगजू नहीं था, वो इंतजाम चलाना भी जानता था। उसने कई मकामी लोगों को अमान दी। मंदिर तबाह करने के बजाय कई जगहों पर लोगों को अपने मजहब पर रहने दिया। तिजारत दोबारा बहाल की और नए निज़ाम कायम किए। इसी दौरान बहुत से लोग मुसलमानों के इखलाक, बराबरी और इंसाफ से मुतासिर होने लगे। कुछ ने इस्लाम कबूल किया और कुछ ने मुसलमानों के साथ रहना शुरू किया। मगर मोहम्मद बिन आसिम की कामयाबी ज्यादा देर कायम ना रह सकी। अरब सियासत बदलने लगी। हज्जाज बिन यूसुफ का इंतकाल हो गया और खिलाफत में नए हुक्मरान आ गए। फिर अचानक मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाने का हुक्म आया। वो नौजवान फातेह, जिसने सिर्फ 17 साल की उम्र में सिंध फतह किया था, खामोशी से वापस चला गया, और कुछ ही अरसे बाद उसकी मौत की खबर फैल गई। मगर उसके साथ आने वाला इस्लाम अब वापस नहीं जाने वाला था, क्योंकि सिंध की सरजमीन पर एक नई तारीख शुरू हो चुकी थी। सिंध की फतह के बाद हिंदुस्तान के नक्शे पर एक नई हकीकत उभर चुकी थी। मगर यह सिर्फ एक फौजी फतह नहीं थी, ये एक नया दौर का आवाज था, जहां ताकत के साथ साथ अदल और अखलाक भी लोगों के दिल बदलने लगा। मोहम्मद बिन कासिम के बाद इस्लामी असरात आहिस्ता आहिस्ता अंदरूनी हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने लगे। मगर यह फैलाव तलवार से ज्यादा दिलों से हो रहा था। वक्त के साथ साथ अरब ताजिर जो पहले साहिलों तक महदूद थे, अब अंदरूनी शहरों तक पहुंचने लगे।
गुजरात, सिंध, मुल्तान और दिल्ली के रास्ते। तिजारत बढ़ने लगी, बाजार पहले से ज्यादा जिंदा हो गए। लोग देख रहे थे कि मुसलमान ताजिर झूठ नहीं बोलते, नाप तोल में इंसाफ करते हैं और गरीबों के साथ नरमी रखते हैं। इसी दौरान एक और बड़ी ताकत सामने आई, सूफी बुजुर्ग। ये वो लोग थे जो दुनिया से दूर रहकर अल्लाह की इबादत और इंसानियत की खिदमत करते थे। वो महल्लों में नहीं जाते थे, बल्कि गांव-गांव और जंगलों तक जाते थे। वो ना बादशाह थे, ना सिपह सालार, मगर उनकी ज़बान में सच्चाई थी और उनके किरदार में सुकून। वो लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाते थे, बल्कि अपने अखलाक से मुतासिर करते थे। वो भूखे को खाना देते, गरीब के साथ बैठते और हर इंसान को बराबर समझते। इसीलिए हिंदुस्तान के आम लोगों के दिल आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की तरफ माइल होने लगे, क्योंकि इस वक्त जात पात का निज़ाम बहुत सख्त था। कुछ लोग आला जात कहलाते थे और कुछ को हकीर समझा जाता था, मगर इस्लाम कहता था सब इंसान बराबर है। ये बात आम लोगों के दिल को छूने लगी। वक्त गुजरता गया और फिर हिंदुस्तान में बड़ी मुस्लिम सल्तनतें कायम होने लगी। गजनवी, गौरी और फिर दिल्ली सल्तनत, कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्ततमश, अलाउद्दीन खिलजी। ये बादशाह सिर्फ जंगजू नहीं थे, बल्कि उन्होंने नए शहर बसाए, मसाजिद तामीर की और एक नया इंतज़ामी निज़ाम कायम किया। दिल्ली एक ताकतवर मरकज़ बन गया और हिंदुस्तान की सियासत बदलने लगी। इसके बाद मुग़ल दौर आया, बाबर, हुमायूं और फिर अकबर। अकबर ने बहुत बड़ा हिंदुस्तानी सल्तनती निज़ाम बनाया, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग साथ रहते थे। आगरा, फतेहपुर सीकरी और दिल्ली इल्म, फ़न और तामीरात के अजीम मराकज़ बन गए। ताजमहल जैसे अजूबे इस दौर की यादगार है। मगर इन सब तब्दीलियों के दरमियान इस्लाम का असल फैलाव अब भी सूफियों और अवामी राब्ते से जारी था, क्योंकि लोग तलवार को भूल सकते हैं मगर अखलाक को नहीं। आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलमान आबादी बढ़ने लगी, मसाजिद कायम हुई, मदरसे बने और इल्म फैलने लगा। मगर ये सब एक लंबे तारीखी सफ़र का हिस्सा था जो आज भी जारी है, क्योंकि हिंदुस्तान में इस्लाम की कहानी सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि एक तहजीबों के मिलाप की दास्तान है। हिंदुस्तान अब एक नए दौर में दाखिल हो चुका था, एक ऐसा दौर जहां सल्तनतें भी थी और इल्म भी, फन भी था और ताकत भी। और इस सब के दरमियान मुगलिया सल्तनत ने एक नई तारीख रकम की। ये वो वक्त था जब बाबर ने पानीपत की जंग के बाद हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी, और फिर हुमायूं के बाद अकबर ने इस सल्तनत को एक नई शक्ल दी। अकबर का दौर सिर्फ जंगों का दौर नहीं था, ये एक बड़े इंतज़ामी निज़ाम का आगाज़ था, जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक ही सल्तनत में रह सकते थे। अकबर ने कई इलाकों में अमन कायम किया, रास्ते महफूज किए और तिजारत को फ़रोग़ दिया। इसी दौर में आगरा, दिल्ली और फतेहपुर सीकरी अजीम शहरों में बदल गए। महल्लात, मसाजिद और दरबार एक नई तहजीब की तस्वीर पेश कर रहे थे। फ़न तामीर अपनी इंतहा को पहुंचा और इसी दौर की यादगार ताजमहल आज भी दुनिया को हैरान करता है। लेकिन मुगलिया दौर सिर्फ महलों और जंगों का नाम नहीं था, ये इल्म का दौर भी था। मदरसे, कुतुब खाने और उलमा की मजलिसें पूरे हिंदुस्तान में फैल गईं। कुरान, हदीस, रियाजी, फल्कियात और फलसफा सब पढ़ाया जाता था। दिल्ली और लखनऊ जैसे शहर इल्म के मराकज़ बन गए। मगर उसी दौर में एक और हकीकत भी साथ चल रही थी। इस्लाम सिर्फ सल्तनत के जरिए नहीं फैल रहा था, बल्कि अवाम के दरमियान सूफियाए कराम के जरिए भी फैल रहा था। ये सूफी महल्लों में नहीं रहते थे, बल्कि गांव-गांव और आम लोगों के दरमियान जाते थे। वो ना ताकत दिखाते थे, ना हुकूमत मांगते थे, वो सिर्फ मोहब्बत, अखलाक और इंसानियत का दर्स देते थे। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और दीगर बुजुर्गान भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में लोगों के दिलों को बदल रहे थे। इनकी खानकाहों में अमीर और गरीब एक साथ बैठते थे, कोई फ़र्क नहीं होता था, और यही चीज़ आम लोगों को इस्लाम के करीब ले आई। क्योंकि इस वक्त माशरे में तबकाती फ़र्क बहुत गहरा था, मगर इस्लाम बराबरी का पैगाम दे रहा था। मुगलिया दौर में मस्जिदें भी बनी, मदरसे भी और इल्म भी फैला, लेकिन साथ ही हिंदुस्तान में मुख्तलिफ सकाफ़तें भी आपस में मिलने लगी। मौसीकी,
फन, जबान और रहन सहन एक नई मुश्तरका तहजीब बनने लगी। उर्दू जबान भी उसी दौर में परवान चढ़ी, जो मुख्तलिफ जबानों का इम्तिजाज थी। वक्त गुजरता गया और मुगलिया सल्तनत कमजोर होने लगी। अंदरूनी झगड़े और बैरूनी हमले इस अजीम सल्तनत को कमजोर करते गए और फिर यूरोपीय ताकतें, खास तौर पर अंग्रेज, तिजारत के बहाने हिंदुस्तान में दाखिल होने लगे। मगर उनका असल मकसद आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होने लगा। वो सिर्फ ताजिर नहीं थे, बल्कि एक नई ताकत थे जो आने वाले वक्त में पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदलने वाली थी। 17वीं और 18वीं सदी मुगलिया सल्तनत अब कमजोर हो रही थी। दिल्ली के दरबार में पहले जैसा रौब बाकी नहीं रहा था। शहजादों के दरमियान झगड़े बढ़ चुके थे और सूबे आहिस्ता आहिस्ता खुद मुख्तार होने लगे थे। इसी कमजोरी के वक्त यूरोप से एक नई ताकत हिंदुस्तान के साहिलों पर उतर रही थी। अंग्रेज, पहले वो सिर्फ ताजिर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। वो कपड़ा, मसाले और दीगर अशिया खरीदने आए थे, मगर तिजारत के पर्दे के पीछे एक बड़ा मंसूबा छुपा हुआ था। रफ्ता रफ्ता उन्होंने साहिली इलाकों में किले बनाना शुरू किए, फिर फौजें, फिर सियासी असर और रसूख, और देखते ही देखते वो सिर्फ ताजिर नहीं रहे बल्कि हुक्मरान बनने लगे। बंगाल, मद्रास, बंबई और फिर दिल्ली तक इनकी ताकत फैलने लगी। इसी दौरान मुसलमान रियासतें भी कमजोर हो रही थी। मुगलिया सल्तनत टूट रही थी और मकामी हुक्मरान एक दूसरे से लड़ रहे थे। ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान एक बड़े सियासी बुहरान में दाखिल हो चुका था। 1857 का साल तारीख का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। ये पहली बड़ी बगावत थी जिसे हिंदुस्तानी तारीख में जंगे आज़ादी 1857 कहा जाता है। सिपाहियों ने बगावत की, अवाम ने साथ दिया और दिल्ली एक बार फिर मरकज बन गई। मगर ये बगावत कामयाब ना हो सकी। अंग्रेजों ने सख्ती से उसे कुचल दिया और उसके बाद मुगल सल्तनत का मुकम्मल खात्मा हो गया। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जलावतन कर दिए गए। ये एक तारीखी ज़वाल था, एक अजीम तहजीब का इख्तिताम। उसके बाद पूरा हिंदुस्तान बरतानवी सल्तनत के तहत आ गया। अंग्रेजों ने नए कवानीन बनाए, नया निज़ाम लाया और वसाइल पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। इस दौर में मुसलमान सबसे ज्यादा मुतासिर हुए, क्योंकि उन्होंने पहले सल्तनत खोई और फिर ताकत भी। बहुत से उलमा, खानकाहों और दीनी मराकिज ने लोगों की रहनुमाई जारी रखी। मुसलमानों ने तालीम और दीनी शनाख्त को बचाने की कोशिश की। मदरसे दोबारा फाल हुए और दीनी तहरीकें शुरू हुई। इसी दौरान हिंदुस्तान में आज़ादी की तहरीक भी जोर पकड़ने लगी। हर मजहब और हर तबके के लोग अंग्रेजों के खिलाफ मुत्तहिद होने लगे। ये एक नया दौर था जहां गुलामी के खिलाफ आवाजें उठ रही थीं और आज़ादी का ख्वाब दिलों में जिंदा हो रहा था। मगर ये सफ़र अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, क्योंकि हिंदुस्तान की तकसीम और एक नए मुल्क का क़याम अभी बाकी था। 20वीं सदी हिंदुस्तान अब एक नए दौर में दाखिल हो चुका था। अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की तहरीक जोर पकड़ रही थी। हर शहर, हर गांव, हर दिल में एक ही सवाल था, आज़ादी कब मिलेगी? मुसलमान, हिंदू, सिख सब मिलकर अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। जलसे, जुलूस, तहरीकें और कुर्बानियां पूरे हिंदुस्तान को हिला रही थी। आखिरकार 1947 का साल आया और बरतानवी सल्तनत ने ऐलान किया कि हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा। मगर ये आज़ादी एक साथ नहीं मिली, ये दो हिस्सों में बंट गई। एक नया मुल्क पाकिस्तान और दूसरा इंडिया। ये तकसीम सिर्फ नक्शे की तब्दीली नहीं थी, ये एक ऐसा सानिहा था जिसने लाखों दिलों को तोड़ दिया। सरहदें खिंच गईं, गांव बट गए, खानदान अलग हो गए, लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। रेलगाड़ियां लाशों से भरने लगी, सड़कें हिजरत करने वालों से भर गईं। ये तारीख का एक दर्दनाक बाब था, जहां खुशी के साथ साथ बहुत ज्यादा दुख भी शामिल था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने एक नए सफर का आगाज किया। नए आईन, नई हुकूमतें और नई उम्मीदें, मगर पुरानी यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। इस्लाम, जो सदियों पहले अरब से आया था, अब एक बड़े खित्ते में फैल चुका था और करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। हिंदुस्तान में आज भी मसाजिद खड़ी हैं, मदरसे कायम हैं और मुसलमान अपनी सकाफत के साथ मौजूद हैं। साथ ही ये मुल्क मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफतों का मरकज़ भी है, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि ये हमेशा से तहजीबों का मिलाप रहा है। स्टोन एज से लेकर इंडस वैली
राजे महाराजे, सूफिया, सल्तनतें, मुगलिया दौर और आज़ादी तक। ये सरजमीन हमेशा बदलती रही है, मगर एक चीज़ हमेशा रही, यहाँ की तारीख, जहाँ हर दौर ने एक नई कहानी लिखी और इस्लाम की आमद ने इस कहानी में एक नया बाब शामिल किया, जो आज भी जारी है। तारीख हमें ये सिखाती है कि ताकत और सल्तनतें खत्म हो जाती हैं, मगर सच्चा ईमान, अच्छा अखलाक और अल्लाह का दीन हमेशा बाकी रहता है।